Just 2 years back in the year 2022, Rohini Acharya turned a lifesaver for Lalu Prasad Yadav as she donated her kidney and cut to 3 years later. In 2025, she claims the very family that she tried to save abused her, beat her with slippers, humiliated her, and sidelined her politically. At this moment, the Lalu family cracks have widened further than ever before. After Tej Pratap Yadav, it is Rohini Acharya who has disowned the Lalu family and quit politics. The fight is no longer a family affair, it's out in the open. And the exit is ugly for Lalu's heir apparent Tejasvi Yadav as Rohini Acharya is levelling serious allegations against him. Listen in. मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय, रमेश, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। वही लोग निकाला है हमको परिवार से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ये ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय और रमेश इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। In a series of posts, Rohini said that she was abused, beaten with slippers and forced to leave her father's house. She claimed that she was targeted because she refused to compromise her self-respect and followed what she called the path of truth. Rohini also said that she was accused of donating a quote-unquote dirty kidney to her father in exchange for political and financial gains. She added that she felt like an outsider in the presence of Tejasvi's close aides, Sanjay Yadav and Ramiz. In her emotional post, she blamed Tejasvi for putting an outsider ahead of her, his sister. It was not something that happened spontaneously. The signs were there during the course of the elections. And just a day after RJD-led Mahagathbandhan's drubbing, she wrote on social media that she was taking the blame for the party's poor performance at the insistence of her brother and his associates. She announced that she was quitting politics and disowning her family. The RJD has tried to downplay the matter, calling it a family issue and saying that only the top leadership will respond. नहीं, देखिए, ये परिवार का मामला है। परिवार के लोग जवाब देंगे और ये पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इसको देखेगा पूरे मामले को। अगर गलत बात अगर बोला है तो ये गलत है। वो घर का बेटी है, भगनी भी है। कोई भी अगर कोई बात बोला है तो उसको मैं गलत ठहराता हूँ। उसको खुद जो है अधिकार है, बेटी भी है घर का, उसको पूरा अधिकार है कोई चीज़ भी बोलने का, कहने का, सुनने का। तो वो अपना अधिकार को वो किसे बोल रही है? उसको तो सीधे बोलना चाहिए कि हमारे घर से बाहर जाइए। अगर आप हमारे घर में रहिएगा तो हमारी मर्जी से न रहिएगा। हमारा मर्जी नहीं होगा, निकाल देंगे। तो उसका घर है, रोहिणी का घर है, माता पिता वहाँ रह रहा है, सब लोग रह रहा है, भाई बंधु सब लोग हैं। अगर कोई ऐसा बात है तो उसको अधिकार है, कह देना चाहिए थे मेरे घर से जाइए। Meanwhile, pouncing on a political opportunity, Tej Pratap Yadav's party offered Rohini the position of national patron of the party. रोहिणी आचार्य को लेकर के, उनके ट्वीट को लेकर के बहुत सारी बातें हो रही है। वो नाराज होकर के यहाँ से चली गई हैं। पटना में 10 सर्कुलर रोड से वो नाराज होकर चली गई और लगातार ट्वीट भी कर रही हैं। इस पर में कोई रिएक्शन? देखिए, बहुत बुरा लगा। जिस घर में बहन का सम्मान नहीं हुआ, वहाँ बहन का अपमान हुआ है। हमारी बहन रो करके गई है, बिहार की बेटी रो करके गई है। ये कोई तेजस्वी यादव जी की बहन नहीं है, ये बिहार की बहन है और बिहार की बेटी है, बिहार की मान और सम्मान है। जब उनके मान सम्मान के साथ खिलवाड़ हुआ है तो एक एक आंसू का बदला लिया जाएगा और उनका जवाब दिया जाएगा। इंतजार करिए वक्त का। जिन लोगों ने घर को फोड़ने का काम किया
और जिन लोगों ने आंसू बहाने का काम किया उसको हमारे नेताजी तेज प्रताप यादव जी छोड़ने का काम नहीं करेंगे। और हम अपनी बहन के साथ खड़े हैं, बहन के साथ मजबूती से खड़े हैं। बदला लेने की बात कह रहे हैं? निश्चित तौर पर टिट फॉर टैट। However, the public nature of Rohini's charges has intensified and can be described as a full-blown feud inside the Yadav household. The BJP said, like the party, even the family is crumbling. देखिए, राजद की अराजकता बाहर जो झलकता था अब घर के अंदर भी झलक रहा है। और इस मानसिकता के लोग जो अपने परिवार को समेट के नहीं रख सकते, वो बिहार को कैसे चला सकते? पहले भाई को अब बहन को, ये मानसिकता कहीं उनका पारिवारिक मामला है, इस पर हम बहुत कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन ये मानसिकता उनके भविष्य को तय करेगा। देखिए, मैं कतई इसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि वो मेरा भी परिवार है। राजनीतिक मतभेद एक तरफ, पर मैंने हमेशा आदरणीय लालू जी को, उनके परिवार को अपना परिवार ही मैंने माना है। ऐसे में आज जब उनके परिवार में इतना कुछ चल रहा है, मैं उस दर्द, उस भावना को समझ सकता हूँ। वो समय दूर नहीं है जब मैं भी इन्हीं परिस्थितियों से गुजरा था। घर में, परिवार में जब तनाव होता है तो वो आपको कितना विचलित, कितना परेशान करता है, मैं इस बात को समझ सकता हूँ। और ख़ास तौर पर उम्र के इस दौर में जिसमें आदरणीय लालू जी हैं, स्वास्थ्य के इस पड़ाव में जिसमें वो हैं, ऐसे में पारिवारिक कलह स्वाभाविक है, उनको काफ़ी परेशान, विचलित करता होगा। मैं बस इतनी प्रार्थना करूँगा कि जल्द से जल्द ये पारिवारिक कलह सुलझ जाए। रोहिणी आचार्य बेटी है, और बेटी जिसने अपने पिता की प्राण रक्षा की, अपने भाई के कलाई में राखी बांधी, उस बेटी के मन में अगर मनः पीड़ा है, राजनीतिक पीड़ा होना एक अलग विषय है, लेकिन उसके साथ व्यवहार की पीड़ा अगर है तो यह तो गृह की जो लक्ष्मी होती है, बेटी लक्ष्मी होती है, सरस्वती होती है, उसका अपमान करना यह हमारी परंपरा का हिस्सा नहीं रहा है। और लालू जी, राबड़ी जी इस पर खामोश क्यों हैं? आखिर ये दूसरी घटना हुई, पहले ऐश्वर्या के साथ हुआ, अब रोहिणी के साथ हो रहा है। सवाल इस बात का उठता है कि आखिर वो कौन व्यक्ति है जिस व्यक्ति के बारे में यह कहा जा रहा है, जिसको राजनीति में पलायन करके बिहार लाया गया। कहाँ है लोकेशन? बिहार के आम आवाम जानना चाहता है, लोकेशन बताइए। और मीडिया के साथियों से अनुरोध होगा कि लोकेशन खोजिए। हार का कोविड सवार हो गया है, फरार हैं, लोकेशन नहीं मिल रहा है। तो यश आप लेने का दावा कर रहे थे, तो अब यश कौन लेगा? लेकिन इसी दौर में बेटी का अपमान होना, उसके आंख से आंसू निकल जाना, ये आंसू लालू जी बहुत भारी पड़ेगा। बिहार में हार के बाद लालू यादव के परिवार में झगड़े की नौबत आ गई है। रोहिणी आचार्य जो कि लालू यादव की बेटी है, उन्होंने आरोप लगाया है कि उनको गंदी गंदी गालियां दी गई, उनको चप्पल तक से मारा गया। देखिए, रोहिणी आचार्य लालू यादव जी की बेटी हैं, लेकिन वो बिहार की भी बेटी है। और बिहार की जो संस्कृति है, कल्चर है, उसमें बेटियों का बहुत सम्मान है। और एक ऐसी बेटी जिसने 2 जवान भाई के रहते हुए अपनी किडनी अपने पिता को दिया हो, इसलिए रोहिणी आचार्य का बहुत सम्मान करते हैं लोग। लेकिन जैसा कि रोहिणी आचार्य ने कहा है, उनको गाली दी गई, हरियाणा के संजय यादव, उत्तर प्रदेश के रमीज़ के कहने पे दी गई, उन्होंने निकलवाया। जिस तरह की बातें वो कह रही हैं, बड़ा दुखद है ये सुनकर। ऐसे तो ये लालू जी के परिवार का मामला है, लेकिन हम सबको ये सुनकर बहुत दुख हो रहा है। क्या इसमें महिला आयोग को भी दखल देना चाहिए, जिस तरह से रोहिणी आचार्य ने आरोप लगाया है? अब वो महिला आयोग, अभी तो स्टेटमेंट आया है और पारिवारिक मामला है, अब देखिए आगे क्या होता है। After turning a lifesaver for the Lalu Prasad Yadav family, Rohini Acharya has now come out in the open publicly
disowning the family and quitting politics. In a series of posts, Rohini alleging that she was abused, beaten with slippers and forced to leave her father's house. She says she has been also accused of donating a quote-unquote dirty kidney to her father in exchange for political and financial gains.